आधार हमारे देश। और इधर हम अभी घंटाघर पे आए हैं, जैसे आप दिखा सकते हैं, ये घंटाघर दिख रहा है और पीछे मेहरानगढ़ दिख रहा है आपको। और हम ये जानना चाहते हैं कि इधर पहले घंटाघर था, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, और अभी तो इधर बहुत ज़्यादा मार्केट आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो इसके बारे में इस्तिहाक, ये जो इधर के ही रहने वाले हैं, इनसे हम 2 शब्द जानना चाहेंगे। पहली मैन सब्जी मंडी मार्केट था 60-70 साल पहले, ठीक है। मैन मंडी थी, उसके बाद में धीरे धीरे कपड़ा मार्केट और भी कोई आइटम हिंदुस्तान के जो भी आते हैं पहले घंटाघर में आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो भी आते हैं पहले घंटाघर आते हैं, घंटाघर की फ़ोटो खींचते हैं, मेहरानगढ़ के फ़ोटो खींचते हैं। निगम एकदम साफ़ सफाई करना चाहती है, साफ़ सफाई करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, फिर जब निगम वाले परेशान होते हैं तो यहाँ पे कूड़ा फेंक देता है। शोर से क्या दिक्कत आती है? शोर से दिक्कत चिल्लाएंगे जो मजदूर होगी इनकी, नहीं चिल्लाएंगे तो क्या मजदूर। क्या नाम है भैया आपका? साहिल साहिल है, वो इधर ही रहते हैं आसपास ही जी। तो उन्होंने देखा है तालाब में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आपने क्या देखा? आप इतने 10 साल से रह रहे होंगे आसपास, तो क्या क्या चीज़ें देखी आपने? यहाँ पर पहले तो गंदगी बहुत बेकार, मतलब बहुत है गंदगी। हाँ। पहले जब था मैं आया था, छोटा था, जब बहुत साफ सुथरा था, बढ़िया बना हुआ था। अब तो हाँ। बहुत कचरा हो गया। देखो सामने भी देखो कचरा है, इधर देखो, हाँ। इधर भी कचरा है। हाँ और ये देखो थोड़ा सा। हाँ। और नहीं, पहले वाइट था पानी। पहले वाइट था पानी। हाँ। और अब तो जैसे मछलियाँ भी नहीं है, पहले मछलियाँ हाँ, थी कि नहीं पहले थी? बहुत थी मछली, छोटी बड़ी। हाँ। अभी इतनी बड़ी मछली देखी हमने। So due to various rituals that are predominant in the Indian culture, in especially Hinduism that is popular in Jodhpur, we can see that there are a lot of contaminants in these lakes. And since the water in the lake is stagnant, there is no out or there is no sinkage to this lake, we can see that the water is polluted. We were informed by a civilian here that 20 years back this was so clean that people used to come here and certain evenings and spend their time for leisure. Also you can see that there are no animals like other than dogs. There is nothing here, but we are informed that there used to be swans as there is a lake, and there used to be pigeons. They used to feed the birds, and we can clearly see that how biodiversity got affected by tourism in this place. The fact that the garbage also includes polythene bags. Many animals are harmed due to the fact, especially if they choke on them. 5-7 साल पहले बहुत अच्छा था, क्लीन एंड बहुत क्लीन था। टूरिस्ट वगैरह आते थे, हमारी बहुत वाहवाही होती थी जोधपुर की। यार घंटाघर जैसा अच्छा पॉइंट इतना बेहतरीन लगता था। अब तो सब कचरा कर दिया इन्होंने, वापस खाई वाली चालू हो गई। मतलब खुली बात बोलता हूँ ना मैं, और क्या, वापस अब कचरा ही कचरा हो गया, अतिक्रमण हो गया चारों तरफ। So I am Praveen, he is Maya. So as you know, there is a lot of waste generation all over globally as well as in India. So for that we have treatment plants. But what if there is a shortage of treatment plants? Then what you think? What will be the impact on the overall climate or in the society? Well, I think there currently aren't enough treatment plants worldwide, and I think the outcome of that is unfortunately inevitable. There would be enough. The governments are acting too late to stop any change, but I could predict higher weather, more pollution in cities, more death in the oceans for the fish, worse animal products. So obviously, you get milk from cows. Cows are eating more rubbish on the streets, for example. Not really sure. Death of coral reefs, lost environment. I'm not really sure. What do you think about the impact of tourists around the local persons or the local houses? Impacting means. Well, I mean, this is a double-edged sword, right? I am a tourist. I love visiting India. But equally, I'm taking planes, buses, trains all over the country, which is not good for the environmental impact, is it? So I use these things, but I'm not really proud of. If I could walk everywhere, I would. It's necessary, isn't it? सर कि जैसे जोधपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, सो फॉरेनर आते हैं यहाँ पर। तो आप ये बताइए 10-15 साल में क्या चेंज हुआ? यहाँ पर पहले
मतलब फॉरेस्ट वगैरह कितने फॉरेस्ट थे और टूरिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा इन फॉरेस्ट वगैरह पे, जंगलों वगैरह पे? पहले जंगल कितने थे और अब उन जंगलों का क्या हुआ वगैरह वगैरह, तो आपका क्या विचार है इस पर? ये तो है ही कि भी पहले जब ऐसे नए नए कॉलेज बने हैं, हाई कोर्ट वगैरह नए नए बिल्डिंग बने हैं यहाँ पे, तो जितने भी कंस्ट्रक्शन नए हुए हैं तो उस जगह के पेड़ काटे गए हैं। पेड़ काटे, उतने पेड़ वापस लगे नहीं हैं, जितने काटे गए उतनी हरियाली वापस की नहीं गई है। तो ये तो कम ही हुआ है, ग्रीनरी बहुत कम हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है क्लाइमेट में भी फ़र्क पड़ा होगा इसी वजह से। और इन पेड़ कटने की वजह से यहाँ पर बारिश वगैरह भी फ़र्क पड़ा होगा, बारिश भी कम होती होगी ऐसा? हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, पेड़ कटेंगे तो बारिश कम होगी, नेचुरल है। हाँ, और थोड़ा बहुत तापमान भी बढ़ा होगा, गर्म मतलब गर्मी बढ़ी होगी यहाँ पर? तापमान बढ़ रहा है, पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा, और रहा भी सीजन भी ज़्यादा रहा गर्मी का, पिछली बार कम होता था। टूरिज़्म बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मतलब एनवायरनमेंट पे बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए कि जिससे कि टूरिज़्म से एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट हो? यहाँ पर पहली बात तो जो गार्ड्स है वो बढ़िया से मैनेजमेंट रख पा रहे हैं और किसी प्रकार का ओवरला नहीं हो रहा है, और कचरे का भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं वो भी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, कचरे को नहीं फैलाकर ये डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट होटल्स वालों पे क्या कर रही है कि जिससे कि गंदगी ना हो? होटल्स वालों पे गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, क्योंकि होटल्स वाले वो इन्वायरमेंट का अपने स्वार्थ है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इस सिटी में हमने कल रात को ही देखा है कि यहाँ पर होटल्स वालों को, पहली बात तो गवर्नमेंट ये चीज़ बढ़िया की है कि 5 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं है एक रूम में, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो शामपुर का जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अब हमने नुकसान तो काफ़ी देख लिए जो इस वजह से हुए हैं, बट आप कुछ फ़ायदे भी बताइए, जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ा है उससे कि यहाँ पर फ़ायदे क्या हुए हैं? यहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा टूरिज़्म बढ़ने का ये है कि जो किले की जो पहली बात तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, दूसरी बात ये गोरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो टैक्सी वाले हैं उनका भी जो किराया आने जाने का है वो बढ़िया हो रहा है, और जो ठेले वाले हैं खाने पीने का जो खाना वाना बनाते हैं यहाँ पर उनका भी बढ़िया तरीके से एकदम, और रोड वगैरह की सुविधाएं भी यहाँ पर, रोड वगैरह की सुविधा एक नंबर है यहाँ पर। और यहाँ पर टूरिज़्म की सबसे बड़ी बात है कि ये किला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है यहाँ पर।